প্রভু তুমি আমাদের আরেকবার যোগ্য করলে প্রভুজি তোমার স্তুতি তোমার মহিমা তোমার আরাধনা করার জন্য যিশু। তাই প্রভু তোমার ধন্যবাদ করি প্রভুজি। প্রভু হয়তো আমরা যোগ্য ছিলাম না প্রভু, কিন্তু প্রভু তুমি যোগ্য করলে যিশু। তাই প্রভু তোমার ধন্যবাদ করি যিশু। আপনি যে স্থানে আছেন সেই স্থানে স্বর্গের দিকে হাত তুলুন আর সেই রাজার রাজা সেই প্রভুদের প্রভুকে আহ্বান জানান, তাকে আরাধনা করুন, তাকে প্রশংসা করুন, কারণ তিনি আরাধনা প্রশংসা যোগ্য পরমেশ্বর। स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। ও ঈশ্বরের মহিমা দেবে, ও ঈশ্বরের প্রশংসা দেবে, কারণ তিনি গৌরব, প্রশংসার যোগ্য পরমেশ্বর। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। मेरी सांस में तेरा नाम रहे, मेरी सांस में तेरा नाम रहे, हे प्रभु तू ही तू। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। जहाँ तेरी नजर जाए वहाँ तेरी स्तुति हो, जहाँ तेरी नजर जाए वहाँ तेरी स्तुति हो। मेरे जीवन का रखवाला तू, मेरे जीवन
ওই প্রভুদের স্তুতি করি, তার মহিমা করি, তার আরাধনা করি। কারণ এই আরাধনা, প্রশংসা ও গৌরবের যোগ্য পরমেশ্বর। আজকে যে স্থানে আসো সেই স্থানে ওই ঈশ্বরকে স্মরণ করো ও ওই ঈশ্বরের শরণাপন্ন আর ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিই। সবার বাকি অংশ প্রভু আমি তোমার হাতে সমর্পণ করলাম যিশু। প্রভুজি, যারা এখানে উপস্থিত নয় প্রভুজি, কিন্তু সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে প্রভুজি তোমার স্তুতি, তোমার আরাধনা গ্রহণ করছে যিশু, আমি সেই সকল ব্যক্তির জন্য প্রার্থনা করি প্রভু, তুমি প্রত্যেককে আশীর্বাদ করো যিশু। এবং প্রভু তুমি আমাদের আরাধনা গ্রহণ করো যিশু। সমস্ত গৌরবময় প্রার্থনা প্রভু যিশু তোমার মতো হচ্ছে, তুমি শুনে আসবে রাজি গ্রহণ করো। আমেন। প্রেজ গড, হালেলুয়া। আসুন আমরা ঈশ্বরের প্রশংসা করি, তার গৌরব করি, তার মহিমা করি। আসুন আজকে আমরা নিজের হৃদয়কে ঈশ্বরের চরণে সমর্পণ করি এবং তার নামকে উচ্চকিত করি। কারণ আজকে প্রভু যিশুর জন্য আমরা বেঁচে আছি। আজকে হয়তো কঠিন পরিস্থিতি, কিন্তু ঈশ্বরের অনুগ্রহ, ঈশ্বরের আশীর্বাদ আমরা বেঁচে আছি। তাই আমরা আজকে ঈশ্বরের কাছে কৃতজ্ঞ। তাই আসুন আজকে তাকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি, কারণ তিনি যোগ্য পরমেশ্বর। যিশুর দয়াতে আমি কৃতজ্ঞ, কৃতজ্ঞ যিশুর দয়াতে আমি কৃতজ্ঞ, কৃতজ্ঞ যিশুর দয়াতে আমি কৃতজ্ঞ যিশুর দয়াতে আমি কৃতজ্ঞ প্রভুর কৃপাতে আমি কৃতজ্ঞ যিশুর দয়াতে আমি কৃতজ্ঞ প্রভুর কৃপাতে আমি কৃতজ্ঞ, কৃতজ্ঞ যিশুর দয়াতে আমি কৃতজ্ঞ, কৃতজ্ঞ যিশুর দয়াতে আমি কৃতজ্ঞ, কৃতজ্ঞ যিশুর দয়াতে কৃতজ্ঞ, 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 কৃতজ্ঞ,
কৃতজ্ঞ যিশুর দয়াতে, আমি কৃতজ্ঞ যিশুর দয়াতে, আমি কৃতজ্ঞ যিশুর দয়াতে, আমি কৃতজ্ঞ যিশুর দয়াতে। যিশুর দয়াতে, আমি কৃতজ্ঞ যিশুর দয়াতে, আমি কৃতজ্ঞ যিশুর দয়াতে, কৃতজ্ঞ। আচ্ছা, ঘরে বসে আছে, ঘরে বসে সঙ্গে হাত ধরে কৃতজ্ঞ आभारी यीशु का आभारी यीशु का आभारी, मैं आभारी यीशु का आभारी, मैं आभारी यीशु का आभारी, আমি কৃতজ্ঞ যিশুর দয়াতে, আমি কৃতজ্ঞ যিশুর দয়াতে। পাপের ক্ষমা যিশু দিলে, নতুন জীবন যিশু দিলে, পাপের ক্ষমা যিশু দিলে, নতুন জীবন যিশু দিলে, কৃতজ্ঞ যিশুর দয়াতে, আমি কৃতজ্ঞ যিশুর দয়াতে, আমি কৃতজ্ঞ যিশুর দয়াতে, আমি কৃতজ্ঞ যিশুর দয়াতে। Praise God, hallelujah, hallelujah। আসুন আমরা সকলে मिले আমরা प्रभुर आरो महिमा करी, तार स्तुति करी। आइए सारे मिलके परमेश्वर की और भी स्तुति करें और भी महिमा करें, उसकी आराधना करें, क्योंकि वो हमारा जीवते परमेश्वर है, वो हमारा सच्चा खुदाबंद है। और आइए इस गीत के माध्यम से जितने सारे लोग इस लाइव सर्विस में जुड़े हुए हैं, वो अपना दान दशमांश परमेश्वर के लिए इकट्ठा करें। आप घर में हो सकते हैं, लेकिन आप घर में भी कोई भी एक जन घर में आप अपने अनुदान को परमेश्वर के पास लाइए, और सारे मिलके जैसे हम मंडली में इकट्ठा होते थे और परमेश्वर के लिए दान उठाते थे, वैसे ही परमेश्वर के लिए जो आपके हृदय में है वो आप दीजिए। और आइए सारे मिलके इस गीत के माध्यम से परमेश्वर की महिमा करें, उसकी बड़ाई करें, उसकी प्रशंसा करें।
निराशाओं में मेरी आशा बना तू, मेरी खामोशियों को समझा तूने प्रभु। मेरी निराशाओं में मेरी आशा बना तू, मेरी खामोशियों को समझा तूने प्रभु। तू वर्ग है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तू वर्ग है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तेरी सुनी प्रसन्नता हो तेरे हर पल महिमा हो तेरी सुनी प्रसन्नता हो तेरी हर पल महिमा हो। दिल की गहराइयों में बसता तू ही प्रभु, तेरी इच्छाओं में पूरा करता चलूं। दिल की गहराइयों में बसता तू ही प्रभु, तेरी इच्छाओं में पूरा करता। तू अमृत है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तू अमृत है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला सामने बताए। तू अमृत है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तू अमृत है, तू सुंदर है, मेरा पहला। जितने सारे लोग जहाँ भी हैं तालियों को बजाते हुए तू अमृत है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तू अमृत है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार। तेरी सुनी प्रसन्नता हो तेरी हर पल महिमा हो, तेरी सुनी प्रसन्नता हो तेरी हर पल महिमा हो, तेरी हर पल महिमा हो, तेरी हर पल महिमा हो, तेरी हर पल। यीशु तेरी महिमा हो। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ गॉड, हालेलुया, प्रेज़ गॉड, हालेलुया, हालेलुया। আসুন আমরা সকলে চোখ বন্ধ করি। आइए हम सारे अपने आंखों को बंद करें और परमेश्वर की स्तुति, उसकी महिमा में जाए, उसकी आराधना में जाए, उसकी उपस्थिति में आज खो जाए। परमेश्वर की उपस्थिति आज आप अपने जीवन में महसूस करें। परमेश्वर के अनुग्रह को आज अपने घर में, अपने परिवार में, अपने कामों में, आपके नौकरी में, आपके बिजनेस में आज महसूस करें। मेरे प्रियो, मैं आज आपसे कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर आज आपके और भी करीब आना चाहता है, क्योंकि परमेश्वर हमारा जीवते परमेश्वर है। वो मृतक परमेश्वर नहीं जो हमको 2000 साल पहले छोड़ के चला गया। वो हमारा जीवते परमेश्वर है जो हमारी प्रार्थना से, हमारी आराधना से हमारे साथ साथ रहता है। हालेलुया, हालेलुया। तो आइए उस जीवते परमेश्वर की उपस्थिति में खो जाए। আসুন আমরা সকলে মিলে তার আরাধনা করি এবং যিশুকে বলি, প্রভু যিশু, প্রভু আজকে এই পরিস্থিতিতে, প্রভু আজকে আমার জীবনে, প্রভু আজকে আমার সুখে যিশু, আজকে আমার দুঃখে, প্রভু তুমি ছাড়া আমার কেউ নেই পিতা। এই জগৎ সংসারে, এই আকাশের নিচে, এই মানুষের মধ্যে যদি কোনো নাম থাকে প্রভু, সেই নাম প্রভু আমাদের জীবিত ঈশ্বর যিশু, তোমার নাম। Thank you, O Lord. Thank you, O Lord. Hallelujah. Praise in the name of Jesus. আমি ভয়
जो तूने दिया है प्रभु हमारे लिए, कि मैं ना तुम्हें कभी छोड़ूंगा ना कभी त्यागूंगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं जितने लोग अभी संकट में, महामारी में प्रभु उलझ रहे हैं, प्रभु सबके लिए प्रभु इस वचन को पूरा कर प्रभु जी। प्रभु धन्यवाद देते हैं प्रभु तेरे उपस्थिति के लिए प्रभु जी। प्रभु धन्यवाद देते हैं जैसे तूने इस सभा को चलाया प्रभु, उसके लिए प्रभु हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं प्रभु तेरे जीवित वचन के लिए जो आज भी सामर्थ्य है प्रभु जी। प्रभु अपने दास को प्रभु तू अभिषेक से भर प्रभु, और हमारे आत्मिक कानों को तू खोल दे प्रभु, ताकि जब तेरा वचन है प्रभु हम उसको सुन सके और सामर्थ्य हो सके। यीशु प्रभु के नाम से आमीन, आमीन, आमीन। प्रेज़ गॉड। प्रभु का धन्यवाद करते हैं, प्रभु की स्तुति, प्रभु की प्रशंसा करते हैं कि प्रभु महान है, और हम ऐसे महान परमेश्वर की स्तुति आराधना करते हैं जो हमारे बीच में रहता है, जो हमारे पास रहता है, जो हमारे साथ रहता है, जो हमारे संग रहता है। Oh, our God is a wonderful God. हमारा परमेश्वर अद्भुत और सामर्थ्य परमेश्वर है। आइए आज हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि डीपर रिलेशनशिप विद गॉड, हम कैसे परमेश्वर से अपना संबंध या अपना रिश्ता और भी मजबूत कर सकते हैं, और बहुत ही गहराई से मजबूत कर सकते हैं। आप मेरे साथ निकाल सकते हैं याकूब की पुस्तक उसका 2 अध्याय, द बुक ऑफ जेम्स चैप्टर 2 वर्स 10 and 11। याकूब की पुस्तक उसका 2 अध्याय उसका 10 और 11 मैं पढ़ रहा हूं। क्योंकि जो कोई सारी व्यवस्था का पालन करता है परंतु एक ही बात में चूक जाए तो वो सब बातों में दोषी ठहरा। इसलिए कि जिसने ये कहा कि तू व्यभिचार न करना, उसी ने ये भी कहा कि तू हत्या न करना। इसीलिए यदि तूने व्यभिचार तो नहीं किया पर हत्या को भी तू व्यवस्था का उल्लंघन करने वाला ठहरा है। 12 पढ़ता हूं, तब उन लोगों की नाई वचन बोलो और काम भी करो जिनका न्याय स्वतंत्रता की व्यवस्था के अनुसार होगा, क्योंकि जिसने दया नहीं की उसका न्याय बिना दया का होगा। दया न्याय पर जयवंत होता है। हे मेरे भाइयों, यदि कोई कहे कि मुझे विश्वास है पर वो कर्म नहीं करता तो वो उससे क्या लाभ? क्या ऐसा विश्वास कभी उसका उद्धार कर सकता है? आज मैं आपको बताना चाहता हूं how we can have the deeper relationship with our God। हमारा परमेश्वर से कैसा रिश्ता होना चाहिए। If you see, अगर आप बाइबल में देखें यहाँ पर कि यहाँ पर बाइबल बताती है क्योंकि जो कोई सारी व्यवस्था का पालन करता है परंतु एक ही बात में चूक जाए तो वो सब बातों में दोषी ठहरता है। अगर कोई व्यभिचार करता है तो वो दोषी है। अगर वो व्यभिचार नहीं करता है, अगर हत्या करता है तो वो दोषी है। अगर वो व्यभिचार नहीं करता है, हत्या नहीं करता, अगर चोरी करता है तो वो दोषी है। अब आप देखें, अगर आप नियम और लॉ के अनुसार जाएं तो बहुत सारे अपराध मैं यहां से आपको निकाल कर दे सकता हूं। If you see, अगर आप देखें सही तरह से बाइबल में कि याकूब की पुस्तक द बुक ऑफ जेम्स एक ऐसा किताब है पूरे बाइबल में जो बहुत ही प्रैक्टिकल बात करता है। पूरे बाइबल में मुझे याकूब की पुस्तक बहुत ही इंटरेस्टिंग बुक लगती है क्योंकि ये मुझे मेरे परमेश्वर के संबंध में ज्यादा बात करता है। Amen. It speaks the deeper relationship with our God। क्योंकि याकूब की पुस्तक हमें बताती है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 22 अध्याय उसका 39 से हम लोग देखेंगे। द बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 22 वर्स 39 to 40 यहाँ लिखा हुआ है, उसी के समान ये दूसरी भी ये है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख।
हालेलुया। यहाँ लिखा हुआ है the second is like you shall love your neighbor as yourself। यही तो आज्ञाशाली व्यवस्था भविष्यवक्ता का आदर है। अगर हम नियम को पालन करने की कोशिश करें, अगर हम लॉ को पालन करने की कोशिश करें, तो हम कहीं ना कहीं फेल हो सकते हैं। अगर हम अपने पड़ोसी को प्यार करना सीख जाएं, हम अपने भाई को प्यार करना सीख जाएं, हम अपने बहन को प्यार करना सीख जाएं, अगर हम अपने रिश्तेदारों का सम्मान करना सीख जाएं, तो इसका मतलब है कि हमारे अंदर से ये जो पाप है ये ऑटोमेटिक जा सकता है। मेरे प्रियो, ये बहुत अच्छा सॉल्यूशन है हमारे लिए। इसलिए प्रभु यीशु ने कहा कि तुम अपने पड़ोसी से प्रेम रखो। हम परमेश्वर से तो प्रेम रखते हैं, परंतु पड़ोसी से प्रेम नहीं कर पाते हैं। और जब हम पड़ोसी से प्रेम करेंगे, अगर आपको ऐसा लगता है कि आप जहां रहते हैं वही आपका पड़ोसी है, नहीं। अगर आप बस में बैठे हैं, अगर आपके बगल में अगर कोई बैठा है तो वो भी आपका पड़ोसी हो गया। अगर आप ऑटो पर बैठे हैं, अगर ऑटो के बगल में अगर आपका कोई बैठा है, वो भी आपका पड़ोसी हो गया। अगर आप जिस ऑफिस में काम करते हैं और आप जहां बैठते हैं उसके बगल में अगर कोई बैठा है, तो वो भी आपका पड़ोसी हो गया। You have to see your neighbor। आपको अपने पड़ोसी को देखना है। कैसे देखना है? प्रेम भरी निगाहों से। हमें अपने पड़ोसियों को प्रेम भरी, याकूब की पुस्तक हमें अपील करता है कि अगर हम इन सारे नियम में फंस जाएंगे, अगर हम इन सारे लॉ में फंस जाएंगे, तो हम कभी भी धर्मी पवित्रता में नहीं आ सकते। क्योंकि पहला पत्रस उसका 1 अध्याय 1 पीटर यहाँ क्लियर करता है परमेश्वर का वचन। पहला पत्रस उसका 1 अध्याय उसका 14 से 16 में लिखा हुआ है। 1 पीटर चैप्टर 1 वर्स 40 to 60। और आज्ञाकारी बालकों की नाई अपनी अज्ञानता के समय की पुरानी अभिलाषाओं के सदृश ना बनो, पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। क्योंकि लिखा है कि पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। यह लिखा है, but like the Holy One who called you, be holy yourself also in all your behavior, because it is written, you shall be holy for I am holy। यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है कि अगर हम इन सारे गुनाहों से बचना चाहते हैं, इन सारे पापों से अगर बचना चाहते हैं, हम इन सारे वीकनेस से निकलना चाहते हैं। आज आपका वीकनेस क्या है? आज आपकी कमजोरी क्या है? क्या व्यभिचार आपकी कमजोरी है? क्या चोरी करना आपकी कमजोरी है? क्या मुंह से गंदी बातें निकालना आपकी कमजोरी है? ना झूठ बोलना आपके लिए कमजोरी है? क्या कमजोरी है आज आपके लिए? आज आपके जीवन में वो कमजोरी है क्या? परंतु परमेश्वर का वचन हमें एक स्टेप आगे जाकर सोचने के लिए कहता है कि अगर आज हम इस वचन को अपने ऊपर डाल, यहां लिखा है कि जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है। आमीन। अगर आज आपको कोई दिख नहीं रहा है, कोई पवित्र इंसान आपको नहीं दिख रहा है कि आप किसको फॉलो कर सकते हैं, मैं आपको बता दूं कि हमारे पास एक ऐसा परमेश्वर है, हमारे पास एक ऐसा प्रभु है जिसने कभी झूठ नहीं बोला। हमारे पास एक ऐसा परमेश्वर है जिसने कभी व्यभिचार नहीं किया। हमारे पास एक ऐसा परमेश्वर है जिसने कभी कोई लालच नहीं किया। हमारा परमेश्वर एक ऐसा परमेश्वर है जो कभी भी किसी से बदला नहीं लिया। अगर आज आपको किसी को देखकर फॉलो करना है तो आप उनको फॉलो कर सकते हैं जिन्होंने आपको आपका नाम लेकर मेरे प्रिय बुलाया है। और बाइबल बताती है कि जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, that means the person who is calling you, he himself is holy so that you can be holy। आज हमारा व्यवहार नहीं बदल रहा है मेरे प्रियो। हम मसीह में आ गए हैं, हम प्रभु में आ गए हैं, हम परमेश्वर को तो जानते हैं, हम यीशु को तो जानते हैं, परंतु उनके कैरेक्टर को नहीं ले पा रहे हैं। इसलिए बाइबल में लिखा है कि हमारे बिहेवियर को चेंज करना है।
We have to change. मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ जब मैंने ये प्रचार आरंभ किया कि याकूब की पुस्तक पूरे बाइबल में बुक ऑफ जेम्स एक प्रैक्टिकल बुक है जो हमें प्रैक्टिकली सोचने के लिए मजबूर करता है। हम वर्स 12 और 13 देखेंगे। याकूब की पुस्तक उसका 2 अध्याय उसका 12-13 लिखा है, तुम उन लोगों की नाई वचन बोलो और काम भी करो जिनका न्याय स्वतंत्रता की व्यवस्था के अनुसार होगा, क्योंकि जिसने दया नहीं की उसका न्याय बिना दया के होगा। दया न्याय पर जीवंत होता है। बाइबल बताती है कि तुम उस वचन का प्रचार करते रहो, प्रभु के वचन को बोलते रहो, प्रभु के गुणगान को करते रहो, और जब आप ऐसा करते हो तो आपका रिश्ता प्रभु से और भी गहरा होता है। मेरे प्रियो, किसी ने मुझसे सवाल पूछा कि हम कैसे प्रभु में बढ़ सकते हैं, हाउ वी कैन ग्रो इन द लॉर्ड। मैंने कहा, you don't have to do like bigger things in your life. You don't have to move mountain. आपको पहाड़ को हटाने की जरूरत नहीं है, आपको कोई बहुत बड़ा कुछ नहीं करना है। मैं आपको बताता हूं कि प्रभु अपने वचन से क्या कहता है। रोमियो की पुस्तक उसका 7 अध्याय, द बुक ऑफ रोमन्स चैप्टर 7 वर्स 6, परंतु जिसके बंधन में हम थे उसके लिए मरकर अब व्यवस्था से ऐसे छूट गए कि लेख की पुरानी रीति पर नहीं, वरन, that's very important, जो लास्ट में पढ़ने वाला, वरन आत्मा के नाई, आत्मा, very important, वरन आत्मा की नई रीति पर सेवा करते हैं। इंग्लिश में पढ़ देता हूं, so that we serve in newness of the spirit and not in oldness of the letter। यहां कहता है वरन आत्मा की नई रीति पर सेवा करते हैं। परमेश्वर ने आज आप जहां से भी प्रभु में आए होंगे, जिस हालात से भी आप प्रभु में आए होंगे, याद रखना हमारा प्रभु में आना सिर्फ चंगाई नहीं था, हमारा प्रभु में आना सिर्फ बिजनेस या नौकरी नहीं था, परंतु हमारा प्रभु में आना सुसमाचार था। अगर सुसमाचार आपके पास नहीं आता तो आप प्रभु को नहीं जानते, और आज वही सुसमाचार आपको अपील कर रहा है कि आपको भी परमेश्वर का वचन प्रचार करना है। आज मैं आपको एक अलग तरह का टीचिंग देना चाहता हूं, क्योंकि आज हम लोग बहुत तरह का प्रचार सुनते हैं, प्रभु ये करेगा, प्रभु वो करेगा, प्रभु ऐसा करेगा, प्रभु वैसा करेगा, प्रभु आपको ये देगा, प्रभु आपको वो देगा। ये सब ठीक है, परंतु आपको सबसे पहले जो देगा उसके संग आपको अपना रिश्ता अच्छा बनाना है। If you do not have the relationship, मैं एक बार एक टीचिंग मैं भाग लिया था, और मैं न्यूजीलैंड के बहुत सारे पास्टर्स लोगों के बीच में मैं एक शिक्षा दे रहा था, और मैंने कहा उन सबसे, बहुत सारे पास्टर्स उसमें जुड़े हुए थे, लास्ट वीक आई थी, और मैंने एक ही चीज वहां पर कहा, उन्हें एक ही चीज कहा कि अगर हमारा रिलेशनशिप आपके संग नहीं होता तो शायद मैं इस प्लेटफॉर्म में आके आपको प्रचार नहीं करता। अगर मेरा रिश्ता आपसे नहीं होता तो मैं आपके संग प्रचार नहीं कर पाता या आपको वचन नहीं दे पाता। इसका मतलब है कि अगर हमारा रिश्ता प्रभु में नहीं होता तो मैं आपको भी नहीं जानता। जब आपका रिश्ता प्रभु से होता है तो वही रिश्ता हमें रिकमेंड करता है आगे बढ़ने के लिए। आमीन। क्योंकि अगर बेस, जो हमारा बेस है वो प्रभु है, उसके संग अगर हमारा रिलेशनशिप सही नहीं है तो याद रखना हम सब जगह से कट ऑफ हो जाएंगे, हम सब जगह से कट जाएंगे। हम चाहे हम जितने भी प्रसिद्ध हो जाए, हम जितने भी फेमस हो जाए, हमारे पास जितना भी पैसा आ जाए, हम जितने भी उन्नति कर ले, परंतु याद रखना अगर हमारा रिश्ता उससे कमजोर
सब व्यर्थ है। बाइबल बताती है ना, सहोपदेशक की पुस्तक, ये सब व्यर्थ है। Those are the meaningless. Hallelujah. Everything is meaningless except the name of Jesus, which is in your life, जो आपके जीवन में है। अगर वो नहीं है तो सब कुछ बेकार है। Everything, whatever you see in your life, क्योंकि बाइबल में साफ साफ कहती है, 1 जॉन उसका 5:3 में लिखा हुआ है, और परमेश्वर का प्रेम यह है। बहुत लोग बोलते हैं परमेश्वर का प्रेम क्या है? क्या है परमेश्वर का प्रेम? परमेश्वर का प्रेम यह है, क्या है? कि हम उसकी आज्ञा को माने और उसकी आज्ञा कठिन नहीं है। आमीन। परमेश्वर का प्रेम क्या है? परमेश्वर का प्रेम यह है कि आप उनकी आज्ञा को मानिए, परंतु बाइबल उसके बाद कहता है उनकी आज्ञा क्या नहीं है? कठिन नहीं है। For this is the love of God, that we keep His commandments, and His commandments are not burdensome. उसकी आज्ञा या उसकी जो वचन जो हमें मिलता है वो बोझ नहीं होगा हमारे लिए। आज क्यों बोझ हो जा रहा है? क्योंकि आज हम कहीं ना कहीं कमजोर हो जा रहे हैं। हम अपने आप को कमजोर कर रहे हैं। हो सकता है कि आप किसी रिलेशनशिप के लिए अपने आप को कमजोर कर रहे होंगे। हो सकता है कि आप किसी पैसे के लिए आप कमजोर हो रहे होंगे। हो सकता है कि आप किसी के अंडर में नौकरी करने से कमजोर हो रहे होंगे। हो सकता है कि आप कहीं फंस गए हो, आप ऐसे चक्रव्यूह में फंस गए हो, इसलिए आप कमजोर हो रहे हो। मैं आपको बता दूं, जैसे ही जहां भी हो आप, जिधर भी हो आप, उस जगह में अभी आपको ऐसा कहना है कि मैं परमेश्वर के हर एक वचन को पालन करूंगा। और जैसे ही आप वचन को पालन करना स्टार्ट करोगे मेरे प्रियो, मैं आपको बता दूं, जो रिलेशनशिप, जो चक्रव्यूह, जो बोझ, जो भी आपको घेर कर रखा है, आप देखेंगे कि वो सब ऑटोमेटिक आपके जीवन से हटना आरंभ होंगे। क्योंकि बाइबल में अगर वचन प्रभु ने इसको लिखा है तो ये सत्य वचन है कि परमेश्वर की आज्ञा मानना कठिन नहीं है। मेरे प्रियो, अपने लाइफस्टाइल को चेंज करें। मैं आपको सच बता दूं कि मैं अपने आप को ऐसा ढाल चुका हूं प्रभु में, मैं इस तरह से प्रभु के संग अपने आप को मिंगल कर चुका हूं कि आप मुझे अगर कहीं भी रख दो, आप मुझे जहां भी छोड़ दो, आपको सिर्फ परमेश्वर का आनंद मेरे अंदर दिखेगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की आज्ञा मानना मेरे लिए बोझ नहीं है। परमेश्वर की आज्ञा मानना मेरे लिए आनंद का विषय है। क्यों? क्योंकि मेरे साथ जिसका रिश्ता है वो मेरा प्रेमी है, वो मेरा पहला प्यार है, और मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ और वो मुझसे बहुत प्यार करता है। आप जिससे प्यार करते हो आप उनकी बात को मानते हो, और मैं अपने यीशु को बहुत प्यार करता हूँ। मैं उसकी बात जरूर सुनता हूँ क्योंकि मुझे मेरा प्रेमी कहता है। इसीलिए यीशु ने कहा परमेश्वर का प्रेम यह है, क्या है? कि उसकी आज्ञाओं को मानना, उसके वचनों को पालन करना। अब मेरा मेन विषय, जिसके विषय में अभी मैं प्रचार करना चाहता हूँ, अभी भी मेरा प्रीचिंग खत्म नहीं हुआ। मैं नहीं जानता कि आप सोच रहे होंगे कि अब लगता है पास्टर जी प्रचार खत्म करने वाले। नहीं, मेरा प्रचार अब स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, अब आप तैयार रहिए वचन को सुनने के लिए। 14 से 17 जो आज मेरा मेन प्रीचिंग पॉइंट है, वर्स 14 से 17 हम देखेंगे। परंतु हे मेरे भाइयों, यदि कोई कहे कि मुझे विश्वास है पर वो कर्म नहीं करता तो उससे क्या लाभ? क्या ऐसा विश्वास कभी उसका उद्धार कर सकता है? यदि कोई भाई या बहन उनंगे खड़े हो और उन्हें प्रतिदिन भोजन की घटी हो, और तुम में से कोई उनसे कहे कुशल से जाओ, तुम गर्म रहो और तृप्त रहो, पर जो वस्तु देर के लिए
आवश्यक है वो उन्हें ना दे क्या लाभ? वैसे ही विश्वास भी यदि कर्म सहित ना हो तो अपने स्वभाव में मरा हुआ है। Even so, faith, if it has no work, is dead being by itself. अगर आज हम कहते हैं कि हम एक विश्वासी हैं, अगर आज हम कहते हैं कि আমরা একটা বিশ্বাসী, हम लोग एक विश्वासी हैं, हम विश्वास में चलने वाले हैं, আমরা বিশ্বাস করি প্রভু যিশু আমাদের জন্য ক্রুশে প্রাণ দিয়েছেন, আমি বিশ্বাস করি প্রভু যিশু আমাদের জন্য এই জগতে এসেছেন, আমি বিশ্বাস করি প্রভু আমাকে আশীর্বাদ করবেন, আমি বিশ্বাস করি আর আজকে প্রভু বলছেন কি যারা বিশ্বাস করে ওদের জীবনে কি কি থাকা দরকার, those who have faith in their life. Ephesians chapter 2, इफिसियों की पुस्तक उसका 2 अध्याय उसका 8 से 9 में लिखा हुआ है, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ है और ये तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है, और ना कर्मों के कारण ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे, क्योंकि हम उसके बनाए हुए और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए जिन्हें परमेश्वर ने पहले ही से हमारे करने के लिए तैयार किया था। अगर आज आपको ऐसा लगता है कि आप कुछ अच्छा काम कर रहे हो और आपको घमंड है उसमें, मैं आपको बता दूं बाइबल साफ-साफ कहता है कि परमेश्वर ने हमें ऑलरेडी उसके लिए तैयार किया है मेरे प्रियो, कि हम परमेश्वर के लिए अच्छा काम करें। अगर आज हमारा विश्वास है परंतु हमारा कार्य नहीं है तो हमारा विश्वास करना बेकार है। प्रभु यीशु मसीह को विश्वास था कि मैं पूरे जगत को बचा लूंगा, परंतु अगर वो क्रूस पे प्राण नहीं देते तो क्या आज हमारा उद्धार होता? नहीं होता मेरे प्रियो। हम विश्वास करते हैं परंतु हमें कार्य भी करना है। Faith without action is dead. हमें हरकत में आना है, हमें लोगों तक सुसमाचार प्रचार करना है, हमें लोगों की हेल्प करना है, हमें लोगों की मदद करना है। हमें एक विश्वासी गिर जाता है, हमें जाकर उठाना है। ये नहीं कि हम विश्वास करते हैं एक दिन वो जरूर गड्ढा से निकलेगा, कभी नहीं निकलेगा। आप याद कीजिए उन बाइबल के स्टोरीज को, आप उन बाइबल के स्टोरीज को याद कीजिए। उस औरत के बारे में जिसका लहू बह रहा था, वो उसका विश्वास था प्रभु यीशु ने चंगा करेगा, परंतु उसका विश्वास हरकत में आया, उसका विश्वास एक्शन में आया, और वो एक्शन क्या था? सीरीज वो यीशु तक पहुंचने की कोशिश की। आपके जीवन में हरकत पाया जाना चाहिए कि हाँ हम प्रभु में पागल हैं, हाँ हम प्रभु के दीवाने हैं। आप पौलुस को देखें, बाइबल में लिखा है कि पौलुस को एक जगह लोगों ने इतना मारा कि ऐसा लगा कि पौलुस अब मर गया। वहां पर लोगों ने सोचा कि ये अब डेड बॉडी है, परंतु बाइबल बताती है कि थोड़ी देर के बाद परमेश्वर ने फिर से उसको आशीष दिया, हिम्मत दिया, पौलुस फिर से खड़ा हुआ और दूसरे गांव में जाकर प्रचार कर रहा था। क्योंकि आपका विश्वास तो प्रभु में है, परंतु परमेश्वर का कार्य भी आपके जीवन में दिखना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह ऐसे कितने लोगों को चंगाई देते हैं, कितने लोगों को आशीष देते हैं, ये सब उनके एक्शन के ऊपर निर्भर था। आज हम विश्वास करते हैं परंतु हमारा एक्शन मिलता नहीं है। हम लोग प्रार्थना करते हैं परंतु हम लोग प्रार्थना के अनुसार काम भी नहीं करते। हम लोग वचन सुनते हैं परंतु वचन के अनुसार चलते नहीं हैं। हमारा फेथ एक्शन में भी होना चाहिए। हम जो विश्वास करते हैं उसमें प्रभु कार्य देखना चाहते हैं। एक बाइबल बताती है, बुक ऑफ जेम्स चैप्टर 1 वर्स 17 में लिखा, 17 में लिखा, क्योंकि हर एक अच्छा वरदान और हर एक उत्तम दान ऊपर ही से आता है, ज्योतियों का पिता की ओर से मिलती है, जिसमें ना तो कोई परिवर्तन हो सकता है और ना अदल बदल कारण उस पर छाया पड़ती है। हर एक अच्छा वरदान ऊपर से आता है, और ये अच्छा वरदान तभी आएगा मेरे प्रियो जब हमारा विश्वास कार्य में दिखेगा। आप काम करो, कोई भी काम करो, आप देखना परमेश्वर उसमें आशीष करेगा।
आप किसी भी तरह का कोई भी काम करो, प्रभु उसमें आशीष देगा। परंतु अगर आप काम नहीं करोगे और विश्वास रखोगे तो नहीं होगा। आपको विश्वास भी रखना है और काम भी करना है। हम लोग बाइबल में एक ऐसी उदाहरण के बारे में जानते हैं कि एक जन को कितना टैलेंट मिला। कितना टैलेंट मिला एक जन को? एक को 1 मिला, एक को 5 मिला और एक को 2 मिला। एक को जिसको 2 मिला वो क्या किया? वो गया जाके मेहनत किया, क्योंकि जिस मास्टर ने उसे दिया उसने कहा कि मैं जब वापस आऊंगा तो मैं इसका हिसाब लूंगा। तो जिसको 2 मिला वो गया मार्केट में, उस 2 को 4 किया, मेहनत किया, काम किया, उसका विश्वास था परंतु काम भी था। और एक को 5 मिला, उसने भी जाकर मेहनत किया, काम किया और 5 का 10 बनाया। परंतु जिसको 1 मिला उसने बोला आई एम नेग्लेक्टेड, मुझे इग्नोर किया गया, मुझे इग्नोर कर दिया गया। क्यों? मुझे सिर्फ 1 ही मिला, 1 से क्या होगा? कुछ नहीं होगा मेरे लिए। उसने क्या किया? वो 1 को जमीन में गाड़ दिया। आज हमारा भी वैसा ही है। आज प्रभु ने हमें जो भी दिया है टैलेंट, उसको हमें बाय फेथ एक्शन में लाना है। जब हम इसको एक्शन में लाएंगे मेरे प्रियो, परमेश्वर उसमें आशीष देगा। परंतु अगर हम चुपचाप बैठे रहेंगे, प्रभु मुझे चंगाई देगा, प्रभु देगा आपको चंगाई, आपको वचन लेकर प्रचार करना है। अगर आप बीमार हैं अभी तो आप दूसरों के बीमारी के लिए प्रार्थना करें, आप देखेंगे आपका शरीर ऑटोमेटिक सही हो जाएगा। आप कमजोर हैं, आप दूसरों को हिम्मत देना सीखिए, आप देखेंगे आप खुद ताकतवर बन जाएंगे। हमें हमारे विश्वास को हरकत में लाना है। और मत्ती रचित सुसमाचार प्रभु यीशु मसीह क्या बोलते हैं इस विषय में, ये बहुत इंटरेस्टिंग बाइबल वर्स है। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 7 अध्याय उसका 21 में लिखा है। द बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 7 वर्स 21। प्रभु यीशु मसीह इस विषय में क्या बोलते हैं? जो मुझसे है, बहुत सुंदर है, जो मुझसे है हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्ग पिता की इच्छा पर चलता है। जो मुझे हे प्रभु कहते हैं वे नहीं पहुंचेंगे, परंतु जो मेरे पिता के अनुसार चलते हैं वे ही स्वर्ग जा सकते हैं। जो सिर्फ विश्वास करते नहीं, परंतु जिनका विश्वास एक्शन में दिखता है, जिनका विश्वास कार्य में दिखता है, वही मेरे पिता के पास जा सकते हैं। हम अगर 10 बार भी प्रार्थना करें, हम 50 बार भी बाइबल पढ़ें, परंतु हमारे अंदर अगर पवित्रता नहीं, बदलाव नहीं, तो हमारा बाइबल पढ़ना, प्रार्थना करना सब व्यर्थ है। हम बाइबल पढ़ें, प्रार्थना करें और काम करें, आप देखिए प्रभु कितनी आशीष देगा हमें। आज याकूब की पुस्तक हमें कहती है कि फेथ विदाउट एक्शन इज डेड। अगर हमारा कार्य विश्वास से मिल जाए तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। आज मैं आपको बता दूं कि अगर आज आप प्रभु से रिश्ता अच्छा बनाना चाहते हैं तो आइए परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना सीखिए। वॉक विद गॉड, टॉक विद गॉड, परमेश्वर के संग बात कीजिए, परमेश्वर के संग चलना सीखिए। जब आप परमेश्वर के संग चलना सीख जाएंगे, इस दुनिया की किसी भी सिचुएशन में, कैसी भी परिस्थिति क्यों ना आ जाए, आप वहां पर खड़े होकर किसी भी चुनौतियों का सामना कर सकते हैं, क्योंकि आप जिसके हाथ को पकड़कर चल रहे हैं वो आपका बल, वो आपकी ताकत है, वो आपका यहोवा परमेश्वर है, वो यहोवा यीरे परमेश्वर है, वो यहोवा सम्मा परमेश्वर है, वो यहोवा जायरे है, वो यहोवा एलोहीम है,
वो यहोवा एल शडाई है। वो हमें हर तरह से सुरक्षा दे सकता है, वो हमें हर तरह से बचा सकता है। परंतु आज आइए हम इन सारी चीजों के बारे में ना सोच के, पर हम ये सोचें कि हम कैसे प्रभु के साथ अपना रिश्ता मजबूत कर सकते हैं। हाउ वी कैन हैव द डीपर रिलेशनशिप विद गॉड। ओनली वन थिंग, वॉक विद हिम। उसके संग चलिए। जो आपका विश्वास है, उस विश्वास में एक हरकत लाइए। आज से आप प्रभु के बारे में दूसरों का सुसमाचार प्रचार कीजिए, दूसरों को बताइए। एक्साइटमेंट रहना चाहिए आपके अंदर कि अभी सुबह 10 बजे हमारा चर्च स्टार्ट होने वाला है। मेरा चर्च बंद है, हमारी कलीसिया बंद है, परंतु आज अभी 10 बजे हमारा सर्विस स्टार्ट होने वाला है। यू नीड टू बी एक्साइटेड फॉर दिस। आपका फेथ है, हाँ ठीक है, हम देख लेंगे, 2 घंटा बाद तो देखेंगे, हम 3 घंटा बाद भी देखेंगे, हम 4 घंटा, हम शाम को देखेंगे आराम से। आप देखिए इसको बाद में भी, परंतु एक सर्विस टाइम एक सेट किया गया है। अब जब आप उस समय सुनते हैं परमेश्वर के वचन को, तो वो अधिक कार्य करता है। मेरे प्रियो, आपके अंदर ये एक्साइटमेंट होना चाहिए, आपके अंदर वो जुनून होना चाहिए प्रभु के पीछे चलना, प्रभु के कार्य को करना। आप देखिए कौन विश्वासी बीमार है, कष्ट में है, आप फोन कीजिए, प्रार्थना कीजिए उनके लिए। आपकी आत्मिक उन्नति तभी हो सकती है जब आप दूसरों के ऊपर इन्वेस्ट करोगे। अगर आप दूसरों के ऊपर इन्वेस्ट नहीं करोगे तो आपकी आत्मिक उन्नति कभी नहीं हो सकती। इसीलिए प्रभु यीशु ने कहा, मेरा प्रेम यह है कि तुम मेरी आज्ञा को मानो, और मेरी आज्ञा मानना उतना कठिन नहीं है। आइए हम परमेश्वर के साथ अपना रिश्ता मजबूत करें। अगर हम कहीं ना कहीं कमजोर हो गए थे, तो आज आइए हम प्रभु को कहें कि प्रभु, मैं वापस तेरे चरणों में आना चाहता हूँ। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका विश्वास तो बहुत मजबूत है, परंतु आपका एक्शन साथ नहीं दे रहा है, तो आज प्रभु को कहें कि प्रभु, मैं इस वचन के अनुसार चलना चाहता हूँ कि मेरा विश्वास जैसा है मेरा कार्य भी वैसा होगा। क्योंकि आज मेरा विश्वास है कि प्रभु कि तू मुझे कभी भूखा रहने नहीं देगा। प्रभु मेरा विश्वास है कि प्रभु तू मुझे कभी लज्जित होने नहीं देगा। प्रभु मेरा विश्वास है कि प्रभु तू हमारे बच्चों को आशीष करेगा। तो जब आपको ये विश्वास है तो उसके अनुसार आपका कार्य भी होना चाहिए, तब प्रभु आपको आशीष प्रदान करेगा। आइए हम जहां भी हैं अपनी आंखों को बंद करें और प्रभु को कहें कि प्रभु, मैं तेरे पास आना चाहता हूं। Thank you, Jesus. We praise you, Jesus. मुझे नम्र बना, मुझे दीन बना, मुझे संयम दे मेरे खुदा। मुझे नम्र बना, मुझे दीन बना, मुझे संयम दे मेरे खुदा। Wherever you are, you can say, oh God, make me humble, break me, oh God, and mold me and make me how you want I should be, oh God. मुझे बना तू जैसा चाहता है। अगर मेरा रिश्ता मेरे भाई के संग खराब हो गया तो ये चिंता का विषय नहीं है। मेरा रिश्ता अगर किसी से खराब हो गया ये चिंता का विषय नहीं है, परंतु अगर मेरा रिश्ता तुझसे टूट गया तो ये काफी चिंता का विषय है। मुझे नम्र बना, मुझे दीन बना, मुझे संयम दे
हम कहें, मुझे पाक कर, मुझे साफ कर। अगर आप प्रभु से दूर हो गए थे, अगर आपका रिश्ता प्रभु से दूर हो गया था, या आपका रिश्ता प्रभु से कमजोर हो गया था, तो कहे, मुझे चढ़ा दे तेरे चरणों में, मुझे पाक कर, मुझे माफ कर, मुझे चढ़ा दे तेरे चरणों में, मुझे नम्र बना, मुझे दीन बना, मुझे संयम दे मेरे खुदा। प्रभु, I pray O God, मैं प्रार्थना करता हूँ प्यारे परमेश्वर कि आज हम तुझसे रिश्ता मजबूत नहीं कर रहे हैं प्रभु, परंतु हम लोगों से रिश्ता मजबूत करने के कारण हम तेरे प्यार से दूर हो रहे हैं प्यारे प्रभु। ये हम सोच भी नहीं पा रहे हैं। हम तुझसे दूर होकर हम लोगों के पीछे भाग रहे हैं। हम तेरे प्यार से दूर होकर हम लोगों के प्यार के पीछे भाग रहे हैं। ऐसे कितने नौजवान हैं प्यारे प्रभु जो यीशु तेरे प्यार से भटक रहे हैं। ऐसे कितने हमारे भाई और बहन हैं प्यारे प्रभु जो पैसे के प्यार में और पैसे के लालच से प्यारे परमेश्वर तुझसे दूर हो रहे हैं प्यारे प्रभु। आज प्रभु हमें नम्र बना, हमें फिर से तेरे चरणों में लेकर आ, ताकि हमारा रिश्ता तुझसे मजबूत हो सके। क्योंकि सबोपदेशक की पुस्तक कहती है, आप जो कुछ भी देखते हो इस संसार में सब व्यर्थ है, सब मीनिंगलेस है, सब मीनिंगलेस है। इस संसार का प्यार, इस जगत का प्यार, ये मोह, ये माया, ये पैसा, the name, fame, everything which you see in this world, it is meaningless. But only one thing is meaningful, the love of Jesus. वो है यीशु का प्यार। आइए उस प्यार से ना भटक जाइए। Thank you, Jesus. Praise Jesus. प्रभु तू प्रत्येक को आशीष दे। God, you bless everybody, oh God. तू हर एक भाई और बहन को आशीष दे जो आज इस सर्विस को देख रहे हैं प्रभु जी। प्रत्येक के जीवन में तेरा अनुग्रह हो, प्रत्येक के जीवन में तेरी दया हो, ताकि प्रभु हम तुझसे भटक ना जाए प्रभु, परंतु हम तुझ में और भी बढ़ नहीं पाए। अगर आज आपको कोई बोल रहा है प्रभु के पीछे चलना बहुत कठिन है, बहुत कठिन है, नहीं, आज वचन साफ साफ कहता है, इट इज नॉट अ बर्डन, ये बोझ नहीं है, इट्स नॉट अ बर्डन, ये आपसे परे नहीं, इट्स वेरी इजी। आइए प्रभु के संग चलिए, कार्य में चलिए। फेथ विदाउट एक्शन इज डेड। आइए हम अपने विश्वास को आज कार्य में लाएं। हम विश्वास करते हैं कि प्रभु धर्मी है, आइए हम भी धर्मी बने। हम विश्वास करते हैं कि प्रभु पवित्र है, आइए हम भी पवित्र बने। हम विश्वास करते हैं कि प्रभु सच्चा है, आइए हम भी सच्चे बने। हम विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु नम्र है, तो आइए हम नम्र बने। हम विश्वास करते हैं कि प्रभु हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तो आइए हम उस सर्वशक्तिमान के सामर्थ से आगे बढ़े मेरे प्रियो, ना कि हम अपने
घरों में, अपने परिवारों में, अपने उस अंधकार के प्यार में खत्म हो जाए, बर्बाद हो जाए, अपने आप को नष्ट करे। Let's come out from that love and see the love of Christ in your life. Have a good relationship with your Jesus. प्रभु तो प्रत्येक को आशीष दे and bless everybody, oh God. Thank you Jesus. প্রভু তুমি সকলকে আশীর্বাদ দাও যারা আজকে সার্ভিস দিচ্ছে, প্রত্যেক জীবনে তুমি অনুগ্রহ করো। কথা বলো প্রভু, কি আমরা যদি চুপচাপ বসে আছি না, প্রভু তুমি আমাদেরকে ডেকেছো, ইভেন নাম ধরে ডেকেছো প্রভু, তুমি আমাদের নাম রেখেছো প্রভু। ও প্রভু, আমাদের জন্য তুমি অনেক ভালো ভালো কাজ রেখেছো প্রভু, সেগুলো আমরা করছি না প্রভু, আমরা করতে পারছি না প্রভু, কেন কি আমরা নিজেকে বেঁধে রেখেছি। হতে পারে জাগতিক ভালোবাসা, হতে পারে জাগতিক সমস্যা, হতে পারে রোগ ব্যথা, এই সব নিয়ে আমরা নিজেকে বেঁধে রেখেছি। যদি আমি করি তাহলে উনি কি বলবেন, যদি আমি এরকম করি উনি কি বলবেন, যদি আমি প্রভুর পিছনে যদি পালাই তাহলে লোক কি বলবে। My dear friends, you need to take this decision, come out from all this, and you will see your God will be with you. Hallelujah. God will bless everybody. Thank you Jesus. प्रभु तुम সকলকে आशीर्वाद दो। प्रभु धन्यवाद प्रभु, बहुत सारा स्टेट अनलॉक हो गया मेरे प्रभु जी। प्रभु एवरी संडे, एवरी वीक वी आर प्रेइंग ओ गॉड, हर वीक हम प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु हमारे ऑनलाइन सर्विस में प्रभु, और प्रभु तो हमारी प्रार्थना को उत्तर दे रहा है प्रभु, उसके लिए धन्यवाद। वो प्रभु हमारे पूरे बंगाल में जो भी केसेस आ रहे हैं प्रभु, प्रभु तो दया कर और आशीष दे प्रभु जी। Bless our nation God, bless our state, bless our all the leaders of God। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं हमारे कलीसिया के हर एक बच्चों को आशीष कर, नौजवानों को आशीष कर, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स को आशीष कर, हर एक माता पिता को आशीष कर, हर एक बुजुर्गों को आशीष कर प्रभु। ब्लेस एवरीबॉडी ओ गॉड। सबके अंदर ये आना चाहिए कि हमें अपने परमेश्वर से रिश्ता और भी गहराई से रखना है, और भी गहराई से रखना है। थैंक यू जीसस फॉर योर वर्ड। धन्यवाद, आज इतने सुंदर वचन से तूने हमसे बातचीत किया प्रभु, सब कुछ तेरे हाथ में देते तू सारी गौर और महिमा तुझे देते। अगर इस वीक में कोई भी अपना बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी अगर सेलिब्रेट कर रहा है, गॉड वी प्रे, वी स्पीक ब्लेसिंग्स, हम आशीष मांगते हैं इस परिवार में तेरा अनुग्रह मत दया। थैंक यू एंड प्रेज यू गॉड। ये प्रार्थना यीशु तेरे नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। अब परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर सर्वदा तक, जब तक प्रभु यीशु मसीह बादलों में लौटकर हम विश्वासियों को लेने ना आए, तब तक हम सब विश्वास में बने रहें, हम सब मिलकर बोलेंगे आमीन आमीन आमीन। प्रेज गॉड। प्रभु आपको आशीष दे, सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आपका विश्वास कार्य में दिखना चाहिए। जिस दिन आपका विश्वास कार्य में आएगा, मैं आपको बता दूं कि कोई भी आपको गिरा नहीं सकता, कोई भी, क्योंकि आप वॉरियर बन जाएंगे, वॉरियर यानी योद्धा बन जाएंगे। तो आइए हम योद्धा बने, क्योंकि जो योद्धा बनता है वो एक्सरसाइज करता है, ताकि वो जब भी युद्ध में जाए तो वो तैयार रहे। तो हम एक योद्धा हैं। अपने घर में चुपचाप ऐसे ना बैठे, किसी भी पाप में ऐसे ना फंस जाएं। आप योद्धा हैं। आपकी फेथ का एक्सरसाइज हर दिन हर समय होना चाहिए। जब आप एक्सरसाइज करेंगे अपने विश्वास का, यू विल बी मोर स्ट्रॉन्गर, मोर स्ट्रॉन्गर।